Good morning students. Today we will be doing invitation writing part 2 of the writing skills. In my previous video I had already told you that invitation writing would be the second question of the writing skill and would consist of 3 marks, 1 mark for the format, 1 mark for the content and 1 mark for expression. So a bit recapitulation of what we had done on that day about the formal invitation, that it is written in box, it is written in third person, we don't have to use any punctuation mark at the end, and everything we have to be very brief and specific while writing that. I'll take one more example because we had not done that example in my previous video. That was about the wedding invitation. If we have to give the wedding invitation to someone, how would we write? Suppose there is a wedding of Mr. and Mrs. Mittal's daughter, P.K. Mittal's daughter, then how would they write the invitation? If we make a box and we have to be in the center, it has to be centrally aligned, बीच में ही रहना है बच्चों. Mr. and Mrs. P.K. Mittal solicit your benign presence benign means gentle on the auspicious occasion of the wedding of their daughter Smriti with Akash, son of Mr. and Mrs. N.K. Sharma, on November 30th, 2020 at 8 p.m. at Grand Hotel, Alipur. RSVP P.K. Mittal 98, then cross 8 crosses. With best compliments. In the wedding invitation we write this because I had told you that if you take out the any wedding invitation which you had received in the past, and if you look, then we have here with best compliments from family and friends. Family, friends. Here you can also write about the program, also you can include in. But after the program, because I am short of space over here, after the program only you are going to write RSVP on the left side. Program is Jaimal 8 p.m. dinner 10 p.m. Vidai 5 a.m. The 5 a.m. okay, and then the date on which the Vidai will take place. So this is how we write the formal invitations. One example I have given you here. In other things, if you want to include the program, it's okay, but if you don't want to, then also it does not matter. The marks will not be deducted. The only thing is that the
event should be very much clear along with the date, time and the venue. So this is how the invitations, formal invitations are written. Okay, how do we now, in your syllabus you also have the replies, that you have to give the reply. Okay, so how a formal reply is written? Formal reply is always written in box. The reply will also be written in box, mind it. Then you have to give date and address at the top left side as we write the letters. This is how. Here in the letter writing also we do the same. In the formal business letters we do the same. So here will be the sender's address who is sending the reply. Suppose you have received a invitation card about that you have to be judge in some function. Say it is some debate competition and you are invited as a judge over there. So you are going to write your address or your school's name, whatever, leave a line, and then here date should be here. You have to be very formal, use formal language, brief, you should be brief to the point because we have to write it in 50 words. The reply is also written in 50 words, so we have to be very much brief. Give, the reply also has to be formal. इसका reply भी बेटा हम formal invitation का reply भी हम formal में ही देते हैं. Acknowledge invitation by thanking the host. सबसे पहले हमने उस invitation को receive करा, हम thank you बोलेंगे. जिसने भी जो हमें इनवाइट कर रहा है हम पहले थैंक करेंगे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, होस्ट को थैंक करेंगे. देन इफ वी आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन देन वी हैव टू कंफर्म दैट यस वी विल बी देयर ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम. बट इफ वी आर डिक्लाइनिंग इट देन वी हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन व्हाई वी आर डिक्लाइनिंग दैट. Okay, the reasons can be so many, that due to some prior engagement or due to some I met with an accident last Friday, or I have to go leave for Bangalore or Jaipur. These are the excuses which you have to give, and you have to be very specific also after that. And here in the formal reply of formal invitation we do not sign at the end. आपको लास्ट में साइन नहीं करना है. जैसे मैं आपको ये बताती हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे यू आर ध्रुव गुप्ता, दिस इज द फॉर्मल रिप्लाई ऑफ द फॉर्मल इन्विटेशन. यू आर ध्रुव गुप्ता ऑफ 24 राजपुर रोड, दिल्ली. ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल डे होस्टेड बाय RSV नंबर 4 रूपनगर. तो क्वेश्चन क्या है, आप ध्रुव गुप्ता हैं, आप यहाँ पर रहते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था, यू हैव टू रीड 2 words एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट. सो यू आर ध्रुव गुप्ता, आप ध्रुव गुप्ता हैं, 24 राजपुर रोड दिल्ली पे रहते हैं. आपको एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करना है. एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल डे होस्टेड बाय RSV नंबर 4 का एनुअल डे है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो हम कैसे बिगिन करेंगे इसको, जैसे हम फॉर्मल लेटर को करते हैं बेटा उसी तरीके से करेंगे. एड्रेस उन्होंने हमारा दे दिया है. इन केस इफ दे डू नॉट गिव द एड्रेस टू यू देन यू हैव टू राइट एन इमेजिनरी एड्रेस. आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, आपको इमेजिनरी एड्रेस होगा, वो आपकी अपनी कल्पना का एड्रेस होगा. तो यहाँ पर उन्होंने हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे 24 राजपुर रोड दिल्ली, and after Delhi I am putting a full stop. I am not putting the comma over here but only after Delhi because this address is finished, so I am putting a full stop over here. This is the sender's address. जो letter लिख रहा है वो sender's address है. बेटा इसमें receiver's address नहीं होता. हमें रिसीवर का नाम, जैसे हम फॉर्मल लेटर राइटिंग में, जब मैं आपको बताऊंगी, और आप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सिंस योर 6th स्टैंडर्ड्स. अगर आप किसी को ऐसे लेटर लिख रहे हैं तो हम रिसीवर्स का एड्रेस भी देते हैं कि भाई कौन रिसीव करेगा, पर यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई में हम नहीं देंगे. अक्टूबर 27, 2020 जो आज की डेट है वो हमने डेट डाल दी. इसमें हमने पहले मंथ डाला,
फिर हमने डेट डाली और फिर हमने ईयर डाला। बेटा यही ठीक तरीका है बिल्कुल लेटर राइटिंग का। यहाँ पे आपने OCT, इधर आप फुल भी लिख सकते हैं, अक्टूबर भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह के नंबर नहीं कटेंगे। अब क्योंकि ये रिप्लाई भी थर्ड पर्सन में ही होगा, ऐसे नहीं लिखना आई, लेटर लिख रहे हैं, सेंडर है ये जो यहाँ पर रहता है ध्रुव गुप्ता, वो इसका रिप्लाई दे रहा है पर वो थर्ड पर्सन में ही देगा। मिस्टर ध्रुव गुप्ता थैंक्स द प्रिंसिपल। अगर यहाँ दो लोग होते, जैसे अगर वेडिंग इनविटेशन होता, लिसन केयरफुली, इफ इट हैड बीन ए वेडिंग इनविटेशन, तो वेडिंग इनविटेशन तो फैमिली को आता है, तो यहाँ पे हम कर सकते थे मिस्टर एंड मिसेस ध्रुव गुप्ता थैंक। इधर मिस्टर ध्रुव गुप्ता अकेले हैं तो थैंक्स। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के बाद एस लिखते हैं। तो मिस्टर ध्रुव गुप्ता थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ RSV नंबर 4 रूपनगर फॉर इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एनुअल डे ऑन November 23, 2020 at 10 AM। पूरा जो आपके पास कार्ड आया था प्रिंटेड, उसमें से आपने डेट और टाइम अपनी लिख ली। आपको वहाँ पे कार्ड नहीं आएगा अगर उसमें कुछ डिटेल्स अगर इसमें दे रखे होंगे कि 20 दिन फंक्शन है और आपको रिप्लाई में एक्सेप्ट करना है, बेटा वो आपको बताएंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब स्वीकार कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे अटेंड द एनुअल डे, ये हमने अपने आप लिखा है कि आपने एनुअल डे के लिए जो कार्ड भेजा था, जो आपका एनुअल डे November 23, 2020 को है 10 बजे, ही कॉर्डियली एक्सेप्ट्स। ध्रुव गुप्ता ये नहीं कह रहा आई कॉर्डियली एक्सेप्ट, ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये चीज़ जो है हम हमेशा थर्ड पर्सन में रिप्लाई करेंगे। ही कॉर्डियली एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन एंड विशेस द फंक्शन अ ग्रैंड सक्सेस। ये हमारे मैनर्स होते हैं कि हम किस तरीके से उसको वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। वो कॉर्डियली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस दिन पहुँच जाएंगे, इस टाइम पे पहुँच जाएंगे, और हम साथ में ये भी विश कर रहे हैं कि आपका फंक्शन एक ग्रैंड सक्सेस हो। और यहाँ पे देखिए आप नीचे, मैंने यहाँ पे ध्रुव गुप्ता नहीं लिखा, हम नीचे नाम नहीं लिखते हैं। बेटा देर आर मैनी हेल्प बुक्स इन द मार्केट इन विच यू विल सी दैट द नेम इज रिटन ओवर हेयर और हेयर कि फ्रॉम मिस्टर ध्रुव गुप्ता या यहाँ पे ध्रुव गुप्ता। तो यू नीड नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड, देर आर नो सिग्नेचर्स एट द एंड। इन द फॉर्मल रिप्लाई कोई भी आप सिग्नेचर एंड में नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर आ गया एक्सेप्टिंग, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अगर यहीं पर मैं लिखूंगी डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब आपको नहीं करना एक्सेप्ट, आपको उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पे पूरा उसी तरीके से चलेगा। मिस्टर ध्रुव गुप्ता थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ RSV नंबर 4 रूपनगर फॉर इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द एनुअल डे ऑन November 23, 2020 at 10 AM। बुलाया तो है ही, तो हम उनको थैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बदल जाएगा बेटा, he is sorry for not attending the function due to prior engagements। और लास्ट में he wishes the function a grand success। वही जो लाइन थी वही हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं पर हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन आपके लिए ग्रैंड सक्सेस हो। इसमें भी नीचे साइन नहीं करेंगे और हमने ये बॉक्स बंद कर दिया। डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइनिंग में भी नॉट, ही इज सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। इनएबिलिटी मतलब अयोग्य है, नहीं आ सकते फंक्शन अटेंड करने। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, पर ये थोड़ा सा आपके लिए शायद सिंपल होगा, ही इज़ सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग, तो मैंने ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस इसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं लाएंगे। अब उसके बाद में ये था फॉर्मल रिप्लाई और डिक्लाइनिंग का और एक्सेप्टिंग का। बेटा अब हम करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशंस। इनफॉर्मल इन्विटेशंस हम किस तरीके से देते हैं
और हमें क्या करना होगा। इनफॉर्मल इन्विटेशंस। I hope the formal invitation, how to draft the formal invitation card and how to give the reply, both accepting and declining, is very much clear to you. Now about the informal letters while inviting others. Informal letters में बेटा short informal letter होता है, बिल्कुल letter writing के ही pattern पे वो होगा. It is sent to family and friends. फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड क्या होता है, वो हम ऐसे लोगों को भेजते हैं, मे बी वी डू नॉट नो देम, मे बी समबडी न्यू इज अपॉइंटेड एज एन MLA एंड वी आर सेंडिंग दी इन्विटेशन टू देम. तो ये जो फॉर्मल है हम भेजेंगे उनको, वो हमारे कोई फैमिली और फ्रेंड तो है नहीं, तो वो हम कार्ड पे प्रिंटेड होते हैं. और यहाँ पे जो इनफॉर्मल होता है ये बेसिकली हम लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ही भेजते हैं. अब इसमें एड्रेस ऑफ सेंडर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सेंडर जैसे हम लेटर राइटिंग में करते हैं, हमारा उसका होगा हमारा जो एड्रेस जिस पर हम रहते हैं, वो अगर हम इनवाइट कर रहे हैं तो वो ऊपर आएगा, उसके नीचे डेट आएगी, और रिसीवर्स एड्रेस इसमें भी नहीं होता है. इसमें डेट, फिर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये हम किस लिए बुला रहे हैं ये हमें बताना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ एन इन्विटेशन, तो ये हमें बताना ज़रूरी है कि वो क्यों हम लिख रहे हैं. एंड बिगिन विद माई डियर या डियर फ्रेंड या माई डियर, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें कहीं पर भी हम RSVP नहीं लिखते, क्योंकि RSVP फॉर्मल हो जाता है कि आप हमें बताइए कि क्या है, तो RSVP फॉर्मल हो जाता है और हम इसको फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में ही लिखते हैं. आई, वी, यू, योर, हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ही, शी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इनफॉर्मल है. फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर सपोज यू हैव पास्ड योर IIT एग्जामिनेशन with flying colors and you want to throw a party, write a letter to your friend, informal letter of invitation to your friend, inviting him to the party. तो हम ये किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा. लेट मी टेक द सेम एड्रेस सो दैट आपको समझ में आए. 24 राजपुर रोड, दिल्ली. फिर मैंने एक वो छोड़ दी, फिर मैं डेट लिख रही हूँ October 27, 2020. फिर मेरा यहाँ पर आ गया एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर सेलिब्रेशन, या इन्विटेशन आप छोड़ दीजिए, यू कैन ऑल्सो राइट सेलिब्रेशन ऑन सक्सेस in IIT दिल्ली. फिर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं डियर, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डियर सोनू ओब्लिक सृष्टि, ये हमने सैल्यूटेशन कर दिया. फिर हमने स्टार्ट करा यू विल बी ग्लैड टू नो that I have passed JEE on and got admission in IIT Delhi. My parents have decided to throw a party on, अब October 27 को हम लिख रहे हैं, November 2, 2020 at 6 p.m. in Richie Rich Hotel. Please
join us to celebrate the moment. Please join us to celebrate the moment. Waiting for you. Yours sincerely भी लिख सकते हैं, affectionately भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया. यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं ध्रुव गुप्ता, और उसके नीचे बिकॉज दिस इज़ इनफॉर्मल साइन भी कर सकते हैं या नाम भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द इनफॉर्मल इनविटेशन इज़ रिटन. बिल्कुल लेटर के फॉर्मेट पे है. यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, ये हमने लाइन छोड़ी है बेटा दोनों के बीच में. देन सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट में हमने लिखा सेलिब्रेशन ऑन सक्सेस इन IIT दिल्ली, और उसके बाद में डियर सोनू सृष्टि, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास्ड. जो मैटर है वो हमने इसमें लिखा है. एडमिशन मिल गया IIT दिल्ली में, तो हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं. हमने डेट बता दिया, वेन्यू बता दिया, और हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ जॉइन अस टू सेलिब्रेट द मोमेंट. Students, these are the sentences which you can memorize. आप किसी भी चीज़ का आपको, जैसे मान लीजिए वेडिंग एनिवर्सरी के लिए भी आपको मिला है ये, और आपने वेडिंग एनिवर्सरी में भी आप अगर किसी को अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, कार्ड नहीं दे रहे हैं, फ्रेंड को बुला रहे हैं, कोई बिल्कुल ही स्मॉल सिंपल प्राइवेट अफेयर है वेयर ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, और दूसरे लोगों को हम नहीं बुला रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं, प्लीज़ जॉइन अस टू सेलिब्रेट द मोमेंट, वेटिंग फॉर यू. ये वाली जो चीज़ें यू विल बी ग्लैड टू नो, जैसे मान लीजिए वेडिंग है, आपके ब्रदर की वेडिंग है, तो हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई ब्रदर्स वेडिंग इज़ ड्यू ऑन सच एंड सच डेट, द बारात विल गो टू या द वेडिंग प्रोसेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. आप बारात भी लिख सकते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के, बिकॉज दिस इज़ अ Hindu, in Hindu tradition and culture it is written as, we speak Barat only. So the Barat will go to Jaipur, and all my friends are accompanying me, so you can also come and join. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, you can also come and join to celebrate the moment, waiting for you. इस तरह से ये इनफॉर्मल इन्विटेशन बेटा बनते हैं. अब इनफॉर्मल इनविटेशन के जो रिप्लाई होते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से. अब हमें इसका रिप्लाई देना है, ठीक है. डियर सोनू और सृष्टि को लिखी गई. अब सोनू और सृष्टि उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो रिप्लाई में भी बिल्कुल आप देखिए इसी तरीके से एड्रेस आ जाएगा. पहले जो भी एड्रेस आपको दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी. डेट मैंने लिखा है, आप यू नीड नॉट राइट द डेट ओवर देयर, सिंपली राइट द डेट, DATE मत लिखिएगा वहाँ पे. तो यहाँ पर डेट आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगा डियर, जिसने भी भेजा है, डियर ध्रुव, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. मान लीजिए मैं इसी का कर रही हूँ, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस on your success in IIT Delhi, on your success in exams, examinations, and getting admission in IIT Delhi. ठीक है. This is a proud moment for all of us. I will surely make a program to attend the function अब फंक्शन के बारे में लिख दो कि कब है फंक्शन. फंक्शन ऑन November 2, 2020 at 6 PM in या at Richie Rich Hotel,
फिर आपने खुद लिख दिया वेटिंग टू सी यू सून, वेटिंग टू सी यू सून, योर सिंसियरली या योर्स अफेक्शनेटली, और यहाँ पे सोनू या सृष्टि। यहाँ पे हमने बेटा एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्टेंस है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। और उसके बाद में हम डिक्लाइन भी कर सकते हैं इसको। एक्सेप्टेंस में हमने कर दिया आई विल श्योरली मेक ए प्रोग्राम टू अटेंड इट। अगर यहाँ पे हम एक डिक्लाइन कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, तो भी आप उनको थैंक यू करेंगे, होस्ट को थैंक करेंगे। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशंस एंड गेटिंग एडमिशन इन IIT. दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, but I am sorry that I will not be able to attend the function due to some prior engagements. किसी भी वजह से हम उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लिखेंगे जो मैंने आपको रीज़न बताया है, दैट आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई एम डाउन विद वायरल फीवर, और आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, सो आई अगेन थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स सिंसियरली, और यहाँ पे नाम आ गया। अब एक्सेप्टेंस हो चाहे डिक्लाइन हो, मेरे ख्याल में आपको हर तरीके से बेटा ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको किस तरह से लिखना है। यहाँ पे ये भी लेटर फॉर्मेट में है, बस यहाँ पे हमने साइन नहीं करे एंड में, और ये हम लिख रहे हैं थर्ड पर्सन में। ये वाला सारा आप देखेंगे यू, माई, आई, वी, ये सारा हम जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनफॉर्मल और फॉर्मल में कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। I am time and again repeating this because this is a sure and short question which is going to come in the CBSE examinations for 3 marks. तो बेटा आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना ये है। तो ये हमारे दो तरह के हो गए, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, और एक होता है फॉर्मल इनविटेशन जो कि लेटर में होता है। फॉर्मल इनविटेशन लेटर में जो कि हम डिग्निटरीज को भेजते हैं, जो हम किसी भी, जैसे मान लीजिए यू ऑल नो दैट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो अगर आप उनका कुछ नया शोरूम खुल रहा है और वो उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो एक ही आदमी के लिए कार्ड नहीं लगाएंगे, वो एक ही आदमी के लिए कार्ड नहीं छपवाएंगे, तो वो एक लेटर लिखते हैं एंड दैट इज द फॉर्मल इन्विटेशन लेटर। फॉर्मल इन्विटेशन दो तरह का होता है ना, आपको बताया था, एक तो कार्ड होता है जो हमने अभी सीखा है, और दूसरा होता है लेटर। दोनों ही बेटा बॉक्स में लिखे जाते हैं, दोनों ही 50 वर्ड्स में हैं, बस आपको ये लेटर फॉर्म में होता है और ये एक सिंगल सेंटेंस में कार्ड के प्रिंटेड फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल इनविटेशन। अब आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के दोनों के बीच में पर्सन का एक डिफरेंस है मेन, जो बेटा समझ में आ गया होगा, और जो किस तरीके से एक कार्ड फॉर्म में है और एक को हमें दूसरे जो इनफॉर्मल होता है वो हम लेटर के फॉर्म में लिखते हैं, ये सब चीज डिफरेंस है। अब फॉर्मल जो लेटर ऑफ इनविटेशन है, ये हम फॉर्मल इनविटेशन का जो लेटर होता है, ये हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं कि आपको एज ए जज बुलाया गया और हम इसको यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी। ठीक है, इसमें बेटा रिसीवर्स एड्रेस आएगा कि हम किसको भेज रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे मिस्टर से नाउ इन द पेंडेमिक एरा, हमें जो सोनू सूद है उनका नाम हम सबको पता लगता है कि वो कितने ज़्यादा सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही बाउंड हैं, तो मैं उन्हीं का नाम लिख रही हूँ, मिस्टर सोनू सूद। और यहाँ पे 1 2 3 जो उनका बैंड स्टैंड मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ एनजीओ, कोई एनजीओ हम खोल रहे हैं, उसके लिए हम उनको बुला रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सर वी आर ओपनिंग
NGO related to welfare of girl child in Andheri East, Mumbai, we invite you as the chief guest for the same. Kindly accept the invitation. ब्रीफ होना चाहिए क्योंकि 50 वर्ड्स में ही हमें लिखना है. Kindly accept the invitation. The opening will be on. अब किस दिन है हमारा वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम बुला रहे हैं उनको. November 3, 2020 at 9 AM. और यहाँ पे जो जगह है उसका नाम हम लिख देंगे 689 अंधेरी ईस्ट, मुंबई. और यहाँ पे योर सिंसियरली और जो भी आपका नाम है आपने लिख दिया और इनविटेशन ये बिल्कुल बंद हो गया. तो इस तरह से बेटा फॉर्मल इनविटेशन लिखे जाते हैं और इसी का एक्सेप्टेंस, और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन कैसे करना है. इसी तरीके से हम करेंगे. पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर. मान लीजिए सोनू सूद जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको वो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे फॉर ओपनिंग दिस न्यू NGO एंड ही सेड आई विल बी हैप्पी टू बी देयर एज अ चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट. और अगर डिक्लाइन करेंगे सो आई कैन नॉट कम ऑन दैट डे ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट्स. तो बेटा अब लास्ट में इनविटेशन राइटिंग को फिनिश करके मैं बस आपको होमवर्क के लिए जो मैं दे रही हूँ आपको, फॉर्मल का हमने उस दिन दे दिया था. इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए इनवाइटिंग योर फ्रेंड, ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं अपने आप लिखेंगे कि यू आर आप कौन है. टू स्पेंड विंटर ब्रेक इन शिमला, अपने फ्रेंड को विंटर ब्रेक है और उसमें टू शिमला आप इनवाइट कर रहे हैं. और इसका डिक्लाइन और एक्सेप्टेंस का लेटर आप लिखेंगे. ठीक है, जो भी आप बनाते हैं उसमें अपने पर्टिकुलर्स देते हैं उसके साथ आप लिखेंगे. इसी तरीके से फॉर्मल लेटर है, आप फॉर्मल लेटर इनवाइट कर रहे हैं. यू आर इनवाइटेड एज ए जज, इनवाइटेड एज ए जज इन पोइट्री कॉम्पिटिशन. और इसका इनविटेशन और फिर वही डिक्लाइन और एक्सेप्टेंस का आपको लिखना है. सो आई होप द इनविटेशन राइटिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू बाय नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the WhatsApp group. Thank you. Have a great day.